جی جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، حقہ پیتے تھے بیٹھ کے. اچھا اچھا اچھا. یہ ہو ایک منٹ تھوڑا یہ بتائیں. جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جی. رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ ہو گیا. اچھا یہ ہو. یہ اس وقت چاروں طرف سے کھلا تھا. جی جی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آنے کے بعد اس کو 3 طرف سے بند کرا دیا تھا، ایک طرف سے کھول دیا تھا تاکہ جو بھی وضو کرے قبلہ رخ ہو، ایک سنت زندہ ہو. اچھا ماشاء اللہ. یہ حوض ہے اندر. وضو کرنے کا یہ کنواں بھی حاجی صاحب کے زمانے کا ہی ہے. یہ کنواں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ. یہ حضرت نے اس کے لیے 2 دعا کی تھی. جی ایک دعا میٹھا پانی ہونے کے لیے اور ایک ٹھنڈا پانی ہونے کے لیے. جی. حضرت نے اس کنویں کے لیے 25 سال تک لگاتار دعا کی. 25 سال کے بعد حضرت کی ایک دعا قبول ہوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی. کنویں کا پانی میٹھا تو ہوا نہیں، ٹھنڈا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہاتھ دھو کر تم اپنا ناشتہ لگاؤ. ہاتھ دھو بڑا کر یہ مزار ہے. جی یہ قبر قاضی محمد اعلیٰ کی ہے. جی ان کا نام قاضی محمد اعلیٰ ہے. جی جی. یہ اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے شہر قاضی تھے. اور پہلا یہ ہوتا تھا جو بھی شہر قاضی ہوتا وہ چیف جسٹس بھی کہلاتا. جی جی جی. یہ اصل خان کا ہمارے اکابرین کی یہی ہے. ماشاء اللہ. جی 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 اصل خان کا یہی. جی. یہاں 3 بزرگ رہا کرتے تھے جی، جن کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا تھا. جی. ایک حافظ محمد ضامن شہید جو شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے تھے 1857 میں، ان کی خلوت گاہیں ہیں. ایک مولانا شیخ محمد فاروقی محدث تھانوی. تو اندر چل تھوڑا. جی جی دیکھ لیجیے. یہ ان کا تعارف ہے، مولانا شیخ محمد فاروقی محدث تھانوی. ایک تھوڑا. حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کا بھی نام ہے نا اس میں شجرے میں. اچھا ادھر ایک منٹ بتا. جی جی دیکھو فوٹو لے کے عثمان. اس میں سوانے ہے. تو مولانا شانوی کا تعارف یہ ہے، وہ جی. حی علیہ الصلاۃ کی طرف بیٹھا کرتے تھے. جی جی. ادھر بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی جی. ایک جو سب کے شیخ تھے سب سے بڑے حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھا کرتے تھے. یہ تینوں بزرگ یہی رہا کرتے تھے، ان کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا تھا. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھا کرتے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ اوپر چھت وہی اسی زمانے کی ہے پرانی یہ گیٹ میں سی لکڑی. جی ایک منٹ. اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے. یہ اسی زمانے کا گیٹ. 3 کڑی اندر جو لگ رہی ہیں جس پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، تینوں کڑی حضرت کے زمانے کی ہیں، حاجی صاحب کے زمانے کی. جی جی یہ حاجی صاحب کے زمانے کی ہیں تینوں کڑی. یہ دیکھیے یہ چھوٹے سے کمرے کہنا بھی ان کا مشکل ہے. یہ کمرے نما کوٹھیاں ہیں مختصر سی، اور وہ بھی ترکونی. یہاں پر بیٹھ کر ہمارے ان بزرگوں نے الحمدللہ اصلاح نفس، تزکیہ قلب اور اصلاح اخلاق کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج بڑی بڑی کانفرنسوں اور جلسوں سے بھی نہیں ہوتے. اب دیکھیے چند افراد کا یہاں کھڑا رہنا مشکل ہے، اور انہوں نے یہاں اپنی پوری زندگی گزاری اور یہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی اور عوام الناس کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خلوت گاہ ہے. احب الصالحین ولست منہم لا یرزقنی صلاحا. نیک تو نہیں ہے لیکن ان نیک لوگوں سے نسبت ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے ہماری سب کی یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہمیں بھی نیکی اور صلاح عطا فرمائے. آمین. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ادھر بیٹھا کرتے تھے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے بھائی آپ کا کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے؟ آپ حضرات تو زیارت کے لیے آئے ہیں. تو وہ پوچھتے تھے بھائی کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے؟
कौन से शहर से आए, तो जो आने वाला होता वो फरमाता कहने लगे जी मैं तो फला जगह से आया हूँ, फला शहर से आया हूँ, मुझको मसला मालूम करना है। तो हमारे हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे हुए इशारा कर दिया उंगली से, हय्या अले सलाह की तरफ मौलाना शेख मोहम्मद फारूकी मुहद्दिस थानवी बैठे हुए हैं, उधर चले जाइए, आप जाकर उधर जाकर मसला मालूम कर लें। उसका मसला मालूम हो गया, उसके बाद और कोई शख्स आता, उससे पूछते भाई आपका कैसे आना हुआ, कहाँ से आए, कहने मैं भी फला जगह से आया हूँ, फला शहर से आया हूँ, मुझे मुरीद होना है, बेत होना है। फरमाया कहने लगे हमारे हाजी साहब हय्या अल फलाह की तरफ बैठे हुए हैं हुजरे के अंदर, वहाँ जाकर आप बेत हो जाइए। वो भी बेत हो गए। और तीसरा शख्स कोई आता, उससे पूछते भाई आपका कैसे आना हुआ, कहने हज़रत मैं भी मुलाकात के लिए और दुआ के लिए आया हूँ। कहने लगे ठीक है, यारों के पास बैठो और हुक्का पियो। हुक्के के बहुत शौकीन थे आप जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। जहाँ आपको मैंने दिखाया वो वहाँ बैठकर हुक्का पीते थे। जी। ये खानका इन लोगों के जाने के बाद 1857 में हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में शहीद हो गए। और जो मौलाना शेख मोहम्मद फारूकी मुहद्दिस थानवी थे, ये 1879 में वफात पाई उन्होंने। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की हिजरत करके कराची के रास्ते से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए थे। उसके बाद ये खानका तकरीबन 42 साल तक गैराबाद रही। अच्छा। इसको कोई आबाद करने वाला नहीं मिला। हाजी साहब को इस खानका की बहुत तड़पन थी, मालूम मैं आ गया, आप आ गए और कोई भी आ गया तो उस पर आबाद उन पर नहीं हुई। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल से फारिग होने के बाद कानपुर में पढ़ाया करते थे, जामिउल उलूम में। आपने वहाँ तकरीबन 14-15 साल पढ़ाया। तो उस वक्त वहीं से आप अपने वालिद अब्दुल माजिद के साथ उम्रा या हज के लिए गए थे और वहाँ हाजी साहब से मुलाकात हो गई, आप वहाँ बेत हो गए। उस वक्त आप तो वहाँ रह नहीं सके, वापस आ गए, दोबारा फिर गए। दोबारा जाने के बाद आप 6 महीने वहाँ आपने इस्लाह की हाजी साहब के दौरे रहते हुए। तो हाजी साहब ने आपको यही नसीहत की थी, कहने मियाँ अशरफ अली जब आपका कानपुर में रहते ताल्लुक़ यानी मन भर जाए, दिल न लगे, तो आप कहीं मत जाना, तवक्कल अल्लाह, मेरी खानका वीरान है, वहीं जाकर बैठ जाना। मैं चाहता हूँ ये खानका ता क़यामत तक आबाद रहे। अल्लाह आपसे दीन के और तसानीफ के बहुत काम लेंगे। दुआ मैं भी करूँगा और मेहनत आप करना। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सेहत के वादे को पूरा करते हुए खानका में तशरीफ़ ले आए थे। हज़रत ने इस खानका को 48 साल तक आबाद किया और 167 खुलाफा तैयार किए। 101 जो हज़रत ने बेत किए और 66 ऐसे हैं जो हज़रत की सोहबत में रहे। हज़रत की जो जब मजलिस होती तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बैठा करते थे इस जगह पर। हज़रत के जो ख़ास होते इधर, अवाम इधर, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस बोर्ड के नीचे बैठा करते थे। जी जी। और ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजदूर रहमतुल्लाह अलैह इधर बैठा करते थे। ये सामने शीशे के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की घड़ी है। एक मिनट, ये इस तरह अपने अशरफ मंजिल में भी थी ना कोई सूरज वाली, और सूरज वाली ऊपर है। अच्छा अच्छा। एक मिनट, ये देखिए, ये बताइए। ये हमारे हाजी अब्दुल गफूर साहब जोधपुरी, जिनकी निस्बत से हम यहाँ आए हैं, दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया और जामिया आयशा के ज़िम्मेदार अशरफ मंजिल के अफराद इसमें नाम है। ये पूरा लेकिन आएगा नहीं साफ। ये हज़रत ने उसी वक्त लगवाए थे ताकि जो भी बंदा आना चाहे वो परे को आए, घूम के इधर को ना आए। 2 सरिये ऐसे थे जो जिनका कुंडा खुल जाता था। हज़रत के वक्त मुतय्यन था, फला टाइम मजलिस होगी, फला वक्त ज़िक्रुल्लाह होगा, फला वक्त मुलाकात होगी, फला वक्त खाना होगा, हर चीज़ मुतय्यन थी हज़रत की। यहाँ तक कि ये गेट बाहर लगा हुआ है, इस गेट का भी उसूल था। ये ईशा की नमाज के बाद 1 घंटे बाद ये गेट आज भी बंद हो जाता है जी। ये उस वक्त भी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूरत तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त जुमेरात की रात थी तो गेट बंद हो चुका था। हज़रत ने पूछा जी, पूरी रात वहीं कोने में को गुजार दी। तो हज़रत ने जी ये गेट है सामने इधर। हज़रत ने पूछा भाई आप किस वक्त आए, कि मतलब रात। कहने लगा आपने गेट क्यों नहीं खुलवाया, कहने हज़रत इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भाई आप तो मेरे उस्ताद के शागिर्द हैं, आपके लिए तो गुंजाइश है। तो उस वक्त अगले दिन जुमे में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज़ पढ़ाई थी, उसमें सूरह अलिफ लाम मीम सजदा
اور सूरह दहर पढ़ी थी, तो अलिफ लाम मीम सजदा में सजदा आता है, तो उस वक्त आपने ऐलान तो नहीं किया, तो आप इसी तरह सजदे में चले गए, तो इससे कोई कुछ मुक्तदी आपके रुकू में कुछ सजदे में, इससे हजरत पे बिगड़ गए। तो कुछ इतना अदब था यानी एक दूसरे के दिल में कि अदबन, ये नहीं अदबन हजरत को तकलीफ नहीं दी कि आपका इसमें गिरम क्या? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। ये थोड़ा अंदर खलवत बात नहीं है। हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी उसी तरह है बिल्कुल। जी माशाअल्लाह, ये बिल्कुल पुराने ज़माने की उसी तरह भी बनी बस हुई है। मरम्मत होती रहती है। जी 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 जी। ये जामिन शहीद जी रहमतुल्लाह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो शाबली के मैदान में शहीद हुए थे, ये उनकी खलवतगाह है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अलग से अपने लिए कोई खलवतगाह नहीं बनवाई। अच्छा, इन्हीं खलवतगाहों में आपने इबादत ये देखिए तिरकोनिया, बिल्कुल तिरकोन है ये, नहीं अलग से। बिल्कुल छोटा सा हुजरा तो कह ही नहीं सकते, ये तो है ना, छोटे से तिरकोन, और यहाँ बैठकर माशाअल्लाह। उसी में उनकी इबादत वगैरह हजरत थानवी की अलग से कोई नहीं थी, उसी में मतलब वो जी अपनी इबादत। इन दोनों खलवतगाहों में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत करी। काबिलीन बताते हैं 1857 जी 3 मरतबा। जी यहाँ अंग्रेजों ने गोली भी चलाई और आग भी जलाई। ये गोली के निशानात हैं जो ये बंद कर दिए गए थे, जो खरदरापन हो रहा है। जी जी। और एक तख्ता वो है जो अंग्रेजों ने उसे जला दिया। हम लोगों ने, हमारे काबिलीन ने, हजरात ने, जिम्मेदारों ने ये तख्ता बदलवा दिया। ये अच्छा। उसी वक्त का दरवाजा है 1857 में। अच्छा अच्छा, वो तख्ता वही है जी जी अभी उसमें अलमारी में लगा जी दिया। जी ये उसी वक्त का दरवाजा है। ये खानका देखिए अब दूर से, ये आपको नजर आती है खलवतगाह है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसमें भी इबादत करी, उसमें भी इबादत करी, अलग से कोई हुजरा नहीं बनवाया। शाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की सन 1114 हिजरी की बनी हुई है मस्जिद। उन्होंने बनवाई या उनके ज़माने की? बादशाह आलमगीर ये लिखा हुआ है। जी अच्छा। बादशाह आलमगीर अहमद शेख ने बनवाई मस्जिद साहब। ये पुरानी मस्जिद है जी, बहुत पुराने ये ये। पुरानी मस्जिद यही है। अच्छा, जी ये जितने भी हमारे काबिलीन ये आगे तोसी हुई है ना? जी तो उसी हुई। ये मस्जिद है बस इतनी सी, ये असल मस्जिद है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, और ये आगे तोसी हुई है, अब बढ़ाई गई है। ये यहाँ दीवार थी जी। और यहाँ जैसे हम लोग यहाँ को निकले और इधर को जाकर पर को निकल जाते थे। जी। आगे दीवार थी, कुछ नहीं था। ये जमीन बराबर वालों से खरीदी गई, जी जी इसकी जगह डबल दी गई। बाद में की है ना, दीवार पुरानी गली तो यहाँ तक ही है। जी पुरानी जगह वही है। ये 2015 में मुफ्ती मुकर्रम साहब संसारपुरी जी। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, अभी जो मसलन नशे है ना, मौलाना नजमुल हसन साहब थानवी, मौलाना जहूरुल हसन, मौलाना ज़हूरुल हसन, हसन साहब के वालिद थे मौलाना जहूरुल हसन साहब। और उनसे पहले कौन थे यहाँ मसलन नशे? मौलाना शब्बीर साहब, मौलाना शब्बीर हजरत साहब के भतीजे। के भतीजे थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। ये हजरत के इधर तालिबीन के कमरे हैं। एक मुरीदीन, ये मौलाना शेख मोहम्मद फारूकी मुहद्दिस थानवी, उनकी नशिस्तगाह है, बैठने की जगह। आप इस कमरे में बैठा करते थे। जी जी। जी इस तरह के कमरे 52 थे, ऊपर नीचे। 52 कमरे थे। अच्छा अच्छा। हजरत के जो मुरीद थे, सालिकीन थे, जी, जी। उनके लिए तमाम कमरे मुख्तस थे और तकरीबन 52 कमरे थे। जी एक कमरे में एक आदमी को ही रहना होता था। जी जब जी। तक रियाजत करते थे, मुजाहदा करते थे। जब जी तक खिलाफत नहीं मिलती थी, कमरे मुतय्यन नहीं थे, खुतूत के जरिए बस। अच्छा जी। आज ये कमरा मिल गया, कल को दूसरा मिल गया, इस तरह। अच्छा अच्छा। जी, इस तरह के 52 थे, ऊपर नीचे। हजरत ने अपने शेख के नाम से ही मदरसा इमदादुल उलूम, ये मदरसा कायम किया। जी। यहाँ न कोई सफीर है, न कोई चंदा होता है, कुछ नहीं होता है। लॉकडाउन से पहले 160 तलबा यहाँ खाना खाते थे, और अब भी 40-50 तलबा लोग आके देते हैं, उसी से जी, चलता जी, है। जी, जी। तवक्कुलन अल्लाह, माशाअल्लाह। छोटी छोटी ईंटें हैं। कौन सी उसी जमाने की? जी, 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 से पहले की है। ये मस्जिद कब उसका कयाम कब हुआ है वैसे? आगे